All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Prathamesh. Hi, Manas. Hi, Shivang. Right. Hi, Harsh, Riddhi, Dravi, Lakshmi. Good. I hope आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा. क्यों, मैंने तो होमवर्क दिया ही नहीं था इस वीकेंड के लिए, तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से तो. ऑल राइट. बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा होमवर्क था. चलो ठीक है. Then let me give more homework today. Otherwise, I will feel bad. अरे थोड़ा थोड़ा सा दूंगा मैं, इतना तो चलता है. हाँ हाँ, ज्यादा नहीं दूंगा. इट विल बी couple of hours maybe, not more than that. All right, so by the time others are joining in, let me do a quick recap of what we did in the last class. So in last class हम लोगों ने orbitals के concept को detail में discuss किया था, where we understood we visualized how the orbitals are, especially let me reshare the screen. अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ, it was my network. I think it was giving a problem, but now it seems to be okay. All right, so yeah, as I was saying that we did a visualization of orbitals, and then we understood the concept of quantum numbers and how they are describing orbitals, right? So this is where we were in the last class. So if I kind of give a quick analogy, you know, जैसे Bohr's model था, right? So Bohr's model, and right now we are dealing with quantum mechanical model, right? So in Bohr's model of atom, if you ask me, हम लोगों ने orbits क्या होते हैं and उनका visualization, right? So orbits, their visualization and their nomenclature. Okay, this was something that was pretty obvious, मतलब taken for granted. Circular orbits होते थे and nomenclature was just KLMN, मतलब n equal to 1, 2, 3, 4. We used to just give the shell numbers, right? यहाँ पर अभी when we come to the quantum mechanical model, so we replace the concept of orbits with orbitals, and without getting much into the derivation of those, that how we get them, I gave you the results of, again, helping you visualize how orbitals are, the regions where electrons are likely to be found, and then I also provided you the nomenclature of it by using quantum numbers. ठीक है? Although to be technically correct,
क्वांटम नंबर्स पहले आते हैं, उसके बाद ऑर्बिटल्स आते हैं, बट ठीक है, इसको इजीली समझने के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेयर वी आर बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लास्ट क्लास. ठीक है, नाउ आज के लिए आई इंटेंड टू कवर two more topics in addition to our understanding of orbitals that was there yesterday. So in Bohr's model of atom हम लोगों ने energy of orbits का discussion किया था. ठीक है, यहाँ पर we did the energy calculation, like we got a formula minus 13.6 z square by n square. यहाँ पर when it comes to orbitals, the calculation of energy of orbitals, ठीक है, absolute value अगर आप मुझसे पूछोगे तो we will not be able to do. It is not something that is part of our syllabus. ठीक है, there is something called as Dirac equation which deals into energy of orbitals but not part of our syllabus. However, we will still be interested in the energy associated with orbitals. तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. We will understand the relative order of energy of orbitals. ठीक है, so how we would describe it वो मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा आपको कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, किसका ज्यादा होगा. ये रिलेटिव ऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे. Exact energy calculations of orbitals are not something which we will be able to pursue. ठीक है, देन यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हम लोगों ने इनफैक्ट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला लिखा था एंड डिस्कशन किया था. ठीक है, डेरिवेशन तो हमने यहाँ पर भी नहीं किया था. उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ ऑर्बिटल का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. एंड इसमें आई विल go into a little bit of experimental detail and talk about orbital as well as spin angular momentum. क्या होगा मैं बताऊंगा थोड़े टाइम बाद. ठीक है, बट अभी के लिए जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. ठीक है, जैसे बोर्स मॉडल था तो बोर्स मॉडल में हमने ऑर्बिट के लिए कैसा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, इन सब का भी कैलकुलेशन करा था. However, when we came to the quantum mechanical model of atom, we discarded the concept of a well-defined path. ठीक है, अब यहाँ पर हमें probability के terms में बात करना होगा. That nucleus है, nucleus के around electron is highly likely to be found where. ठीक है, so those regions are something that are discussed. Energy calculation as well as angular momentum calculation जो हमने बोर्स मॉडल में देखे थे, उनका यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बट विद certain limitations that we will not be able to get into a lot of details. So let's try to cover this much today and continue from where we left off in the last class only. So if you remember this table जो हम लोगों ने last class में लिखा था, so this was something after discussing the first three quantum numbers. ठीक है, अभी चौथा quantum number बचा है, principal, azimuthal and magnetic quantum numbers. We arrived at how orbitals are named using this using these quantum numbers. ठीक है, and then मैंने आपको ये सॉरी हाँ ये शेल सब शेल का कॉन्सेप्ट भी समझाया था which was based on energy. ठीक है, तो इसी पे थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं. यहाँ पर ऑब्जर्व करना. So let me put the heading energy of orbitals.
or I should rather put the heading relative order of energy of orbitals. So यहाँ पर एज अ नोट मैं वापस से लिख ही देता हूँ ताकि आपको बार बार ये डाउट नहीं आए. ठीक है. एनर्जी कैलकुलेशंस of orbitals are OOS. Nobody is going to ask you to do the energy calculations. उसके लिए जो मैथ्स लगती है वो हम लोगों को भी नहीं आती है, उतना हमने पढ़ाई नहीं है. However, the relative order of energy of orbitals is something that can be understood in the following manner. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना. For single electron system, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में the relative order of energy of orbitals depends only on n. Depends only on the principal quantum number. ठीक है. As n increases, energy of orbitals increase. So if you ask me, let's say this is the scale of energy. ठीक है. So 1s, ठीक है, हाइड्रोजन एटम से सिंगल एटम सिस्टम में 1s will have the lowest energy, followed by or higher energy will be of 2s. ठीक है. इनफैक्ट 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनका एनर्जी लेवल और 2s का एनर्जी लेवल सेम रहेगा. ठीक है. देन 3s, 3p, 3d इनका एनर्जी लेवल सेम रहेगा एंड इट विल बी हायर देन द 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. समटाइम्स इसको थोड़ा सा और अगर इलैबोरेट करके दिखाना हो यहाँ पर, सो यू विल हैव 1s, 2s, देन 2p के अंदर, बिकॉज 2p इज अ सबशेल, इसके अंदर 3 और ऑर्बिटल्स हैं, सो मैं अलग अलग करके भी दिखा सकता हूँ. 2px, 2py, 2pz, and similarly then you have 3s, 3px, 3py, 3pz and so on so forth. ठीक है. These are 3d orbitals. So 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dz square और क्या होता था 3dx square minus y square. ठीक है. ये सब नाम याद रहने चाहिए. Right. So this would be the relative order of energy of orbitals. ठीक है. However, when it came to a multi-electron system, ठीक है, then यहाँ पर ऑब्जर्व करना. In case of multi-electron system, for example, say the simplest multi-electron system would be say H minus ion, or you can also say helium atom. In this, the relative order of energy of orbitals
depend upon n as well as l. ठीक है, the reason why L came into picture is because of electron electron interactions. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा रहता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देयर इज जस्ट न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है दैट डिपेंड्स, और जो एनर्जी प्रेजेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड इन दैट केस इट वाज फाउंड टू डिपेंड ओनली ऑन n. ठीक है, whereas जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्कशन होता है, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में there is one nucleus that is positively charged, but then there are many electrons around the nucleus. So जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होता है एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होता है. ठीक है, so that electron electron interaction also plays a role, as a result of which the relative order of energy of orbitals, it depends on n as well as l. ठीक है, because l it describes the shape and shape associated with the orbitals. ठीक है, now अब ऑब्जर्व करना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अब आपके लिए रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो इन द सेम मैनर एज वी डिड, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. So if I take this to be the scale of energy, and single electron system नहीं, multi electron system के लिए कर रहे हैं, so वन एस. ठीक है, यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू कितना आ रहा है? n is 1, l is 0, तो n प्लस एल वैल्यू 1 आ रहा है. देन 2s, 2s के लिए n प्लस एल कितना आ जाएगा? n will be 2, l will be 0, n प्लस एल will be 2. देन 2p. ठीक है, 2p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं 2px, 2py, 2pz, उनका n प्लस एल तो सेम ही आएगा. ठीक है, 2px, 2py, 2pz, n प्लस एल कितना हो जाएगा? n will be 2, l will be 1. राइट, ये समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से देयर विल बी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग ऑन n प्लस l वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज n प्लस l रूल इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, what the rule says is that as n plus l increases, or rather I can write it as higher the value of n plus l, higher is the energy of the orbital. ठीक है, इसमें एक और चीज नोटिस करना, in case of same n plus l value,
ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल्स हैं उनका n प्लस एल वैल्यू सेम है, लोअर n will have lower energy, कि जिसका n वैल्यू स्मॉलर रहा उसका एनर्जी लेसर रहेगा. जैसे इफ आई काइंड ऑफ टेक दिस, थोड़ा मैं और इलैबोरेट करता हूँ. लेट मी काइंड ऑफ पुट इट ओवर हियर. अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 3s, ठीक है, तो 3s का n प्लस एल वैल्यू कितना आ रहा है, वापस से 3 आ रहा है, ठीक है, बट 2p और 3s में 2p का एनर्जी लोअर रहेगा बिकॉज ऑफ लोअर n वैल्यू. ठीक है, दिस इज 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 सॉरी 2 plus 1 and this will be 3 plus 0. So n plus l value same है, but lower n will have lower energy. ठीक है, if you go higher, say आप 3p पर आ जाओ तो n plus l वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो 3p का एनर्जी लेवल 3s से ज़्यादा रहेगा. 3px, 3py, 3pz. देन अब आप नोटिस करना यहाँ पर, अगर आपका मैं 4s और 3d के बीच में कंपैरिजन करूंगा तो 4s का एनर्जी लेवल लोअर आएगा, 3d का एनर्जी लेवल 3 plus 2 5, तो 3d का एनर्जी लेवल विल बी हायर. ठीक है, सो ये 3d के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. आई एम नॉट रीराइटिंग अगेन ऑल ऑफ देम, बट या 3d के पांचों ऑर्बिटल्स. सो 2s में मैंने कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2s में 2 plus 0, राइट. ठीक है, तो मैं एक बार वापस से आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ. एज अ क्विक रिकैप, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम लोग बोर्स मॉडल के बाद अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं. तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है, ठीक है, और मैं बार बार रीआइट्रेट भी करता जाऊंगा दैट मैं आपके साथ में रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाउ डिड वी डिराइव इट, सो द आंसर इज दैट वी राइट नाउ आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन. ठीक है, सो यहाँ पर एज एन एनालॉजी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है, उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. दैट ऑर्बिट्स के केस में आई स्पोक अबाउट विजुअलाइजेशन एंड नोमेनक्लेचर कैसा रहता है बोर्ड्स मॉडल में. तो विजुअलाइजेशन वाज दैट दे वर सिंपल सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड नोमेनक्लेचर इज व्हाट वी डिड n1 2 3 KLM शेल, इस तरीके से करा. ठीक है, नाउ लास्ट क्लास वी वेंट इनटू डिटेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर विजुअलाइजेशन एंड नोमेनक्लेचर. ठीक है, हम लोग डेरिवेशन में नहीं गए. मैंने क्या बोला, बोर्स मॉडल का ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड होके ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है. ठीक है, and orbitals are regions around the nucleus where electron is likely to be found, and then we directly went on to these results and understood that how these orbitals are and how do we name them. ठीक है, using quantum numbers. ठीक है, that is what we understood in the last class. ठीक है, now
अभी I want to share more results with you from the quantum mechanical model. ठीक है? And this particular result that I'm talking about is associated with the energy of orbitals. ठीक है? अब बोर्स मॉडल में आप लोगों ने एनर्जी का कैलकुलेशन देखा था. हम लोगों ने प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एनर्जी का कैलकुलेशन करा था फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स. यहाँ पर in the quantum mechanical model I am reiterating that we will not be able to do the calculations. We do not have the necessary mathematical knowledge to understand the energy calculations of orbitals. However, what is important for us to understand is the relative order of energy of orbitals. किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा. So in order to get into the details of that relative energy of orbitals, मैंने आपके साथ में कुछ results share करे हैं. ठीक है? The result is that for a single electron system, the energy of orbitals depends only on n, and as n increases, energy of orbitals increase. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अगर मैं relative order of energy of orbitals पूछूंगा आपसे, so this is how you can answer. ठीक है? ये वाला हटा देता हूँ. Let me just use this detailed one only. ठीक है? That फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी, सेकंड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी. ठीक है? इसको हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग टेबल ड्रॉ कर रहे थे तब हमने इसको बोला भी था. दिस वाज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल. ठीक है? इफ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर मैं बात करूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? दिस विल बी ग्राउंड स्टेट, है ना? दिस विल बी द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, दिस विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. दिस विल बी द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, we'll call it second excited state, and so on so forth. ठीक है? तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का रिजल्ट था. However, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए there is a slight difference. ठीक है? एंड इस डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर जस्ट अ सेकंड इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ. देन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैंने आपको ये हाईलाइट करा दैट in case of multi-electron system, relative order of energy of orbitals, it depends upon n as well as l. ठीक है? Now, how did we arrive at this? वो मैं again, that is the same thing. I will not be able to get into the derivation part. ठीक है? This is something for you to remember that when it comes to multi-electron system, what happens is that along with the nucleus-nucleus interaction, electron-electron interactions also play a role in deciding the energy. ठीक है? And as a result of that, N as well as L both make a difference. And because of that, we see that the energy of orbitals depend on something called as N plus L rule. ठीक है? तो ये N plus L rule को मैं थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर. ये N plus L rule को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ. N plus L rule क्या कह रहा है? That higher the value of N plus L, higher is the energy of the orbital.
and based on that you can see how the relative order of energy, ठीक है, you can take this यहाँ पर, you can take this example as say H minus, ठीक है, या हीलियम एटम बोल दो, ठीक है, ऊपर क्या था, this was hydrogen or helium plus, this was single electron system, this is a multi electron system, ठीक है. So यहाँ पर this will be the relative order of energy based on n plus L values, ठीक है. And now in this, if you want, you can also highlight the subshell concept, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था. So this was the first shell, ठीक है. Then 2s and 2p को हमने क्या बोला था, this is the second shell, ठीक है. And within this, जैसा मैंने आपको बोला था that 2s will be called as S subshell, whereas 2p will be called as P subshell, ठीक है. Similarly 3s 3p 3d, ठीक है, अगर आप 3d पे जाओगे तो that will be called as a third shell. But however यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर एक नोटिसेबल पॉइंट ये है that 4s का एनर्जी 3d से कम आएगा, ठीक है. So this will be not fourth नहीं, this will be third shell, ठीक है. इसमें 4s इंक्लूड मत करना, 4s फोर्थ शेल में इंक्लूड होगा, don't include 4s. In this, this will be the 3s corresponds to the S subshell, 3p corresponds to the P subshell, and 3d correspond to the D subshell. Okay, it's just that because of the lesser value of n plus L, 4s का energy comes out to be lesser, ठीक है. So this kind of was the reason why in the last class मैंने आपको ये शेल और सब शेल का नोमेनक्लेचर बताया था, ठीक है. नाउ इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, इनफैक्ट चलो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी अंडरस्टैंड इफ यू हैव वन और मोर डाउट्स. आप लोगों ने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे भी थे, मैंने री एक्सप्लेन तो करा एक बार, बट अभी भी आपको हाँ कुछ डाउट है. जैसे फॉर एग्जांपल आस्था का डाउट है दैट जब आपने सर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बताया दैट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन होगा तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई विल कैप्चर इन सम टाइम and we'll talk about it in a subtopic called as Zeeman effect, ठीक है आस्था. मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा इसके बारे में डिस्कशन. एक्चुअली ये चीज बाद में बोर्स मॉडल के बाद में समझ में आने लगी. जैसे बोर्स मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था n equal to 2 से n equal to 1 से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, या से n equal to 3 से n equal to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास इतने अच्छे रेजोल्यूशन टेक्निक्स नहीं थे तब तो हमें समझ में आया था कि दिस विल बी जस्ट वन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है.
बट बाद में जब हमारे पास अच्छे रेजोल्यूशंस या अच्छे ऑब्जर्वेशंस आने लगे, तो हमें बाद में समझ में आने लगा that this line that we used to think is a line is actually a collection of closely spaced lines. Okay, there are some multiple lines that are forming this 3 to 1 का transition. ठीक है, and this kind of was one of the experimental evidences which became a drawback of Bohr's model of atom and led to this concept of shell subshell going forward. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा बट अभी नहीं, इन अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर. अभी आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स in terms of the quantum numbers n, and in case of multi electron n plus l value. ठीक है, हाँ हर्ष, तुम्हारा क्या डाउट है? लेट मी अनम्यूट यू, बोलो. हेलो सर. हाँ सर, हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे अपर अपर शेल में जाएंगे तो उसका एनर्जी बढ़ते रहता है एंड सबका स्पेसिफिक एनर्जी रहता है. अगर ये जो 4s है वो 3d से कम होगा बट वो फिर ऊपर वाले शेल में फिर होगा तो फिर उससे कुछ डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा? नहीं, सो ओके, दैट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने बोर्स मॉडल में सीखा था ना, हाँ सर. राइट, दैट वाज बेस्ड ऑन जस्ट द n वैल्यू. ठीक है, however with more understanding, with more experimental evidence, we got to understand that orbitals का energy, it just doesn't depend on n, it also depends on the l value. ओके सर. ठीक है, वन मोर डाउट. हाँ सर, वो जो ऊपर आपने लिखा था नोट, उसमें था कि एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल्स आर. सर, जो आपने 0 0 ऐसा जो भी लिखा था मेरे को समझ में नहीं आया. अरे तो यार मैं बार बार ऐसे लिख देता हूँ ना, आउट ऑफ सिलेबस. ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक. आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस क्या रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ऑलराइट, नाउ ये रिजल्ट समझने के बाद में, ठीक है, अब आपको शेल सब शेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, थोड़े से मैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा आप लोगों को बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. ठीक है, सो अच्छा शेखर, तुम भी कुछ पूछना चाह रहे हो? पूछ लो, बोलो. शेखर, मैंने तुम्हें अनम्यूट करा है. अरे ठीक है, हाँ, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल एंड वो एग्जाम्पल के साथ में ही आई विल टीच यू वन मोर टर्म. Let me just take that question. So यहाँ पर ठीक है, एक बार के लिए ये वाला पार्ट भूल जाओ.
ठीक है, ये आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है और आगे काम भी नहीं आएगा। जिस इस तरीके से लिखा हुआ है, द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ hydrogen atom is 9, while the degeneracy of the second excited state of H minus is. ठीक है, so now let's understand this term degeneracy and degenerate orbitals first. So let me first explain the term degenerate orbitals. What it means. Orbitals having the same energy are called as degenerate orbitals. Degeneracy, जैसे मतलब एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो उसमें 2s 2px 2py 2pz are degenerate. That means they have the same energy level. Similarly, थर्ड शेल के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, they are also degenerate. Now इसी के साथ में एक टर्म रहता है degeneracy. Degeneracy of an energy level. इसका क्या मीनिंग होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स corresponding to that energy level. This is called the degeneracy of that energy level. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेटमेंट आपके लिए दिया गया है, degeneracy of second excited state of hydrogen atom is 9. ठीक है, degeneracy of second excited state of hydrogen atom. Now this is something that we have drawn the diagram for. मैं सीधे सीधे उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, so as it is I am picking up this diagram. So observe करना, this is the scale of energy. This is the ground state, first excited state, second excited state. So ये हमारा second excited state का energy level हो गया, ठीक है, and इसका degeneracy कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पर you can observe that the answer is 9. It corresponds to these 9 orbitals having the same energy level. ठीक है, so that is the first line of that question, that degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is 9. अब आपसे पूछा जा रहा है while the degeneracy of the second excited state of H minus is, that is what is being asked. So यहाँ पर अब आप नोटिस करना H minus के केस में, ठीक है, H minus के केस में यहाँ पर ये हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज,
ठीक है. So H minus becomes multi-electron species. Whereas hydrogen was a single electron species. So single electron species में हमारा energy level of orbitals was just based on n. Multi-electron में, as you would know, it would be based on n plus l. ठीक है. So यहाँ पर 1s, then 2s, and then followed by 2p. ठीक है. This will be the ground state, first excited state, and this will be the second excited state. Right. So the degeneracy of second excited state is 3 because of the 3 orbitals corresponding to that energy level. ठीक है. ये समझ में आया. 2px 2py and 2pz. हाँ. So degeneracy का definition मैंने आपको ये लिखा है, number of orbitals corresponding to that energy level. So when energy of orbitals is discussed, these terms degeneracy or degenerate orbitals is many times used. So वापस से मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है degeneracy of second excited state n equal to 3 of hydrogen atom is 9, while degeneracy of the second excited state of H minus is being asked. ठीक है. तो डेफिनेटली जब मैंने क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, because of the fact that I introduced these terms in the question itself. What is meant by degenerate orbitals and degeneracy of an energy level? Okay. Degenerate orbitals are orbitals having the same energy. ठीक है. Degeneracy of an energy level, that means the number of orbitals corresponding to that energy level. Right. So it is not the name of the orbital, it is the number of orbital. Okay. Degeneracy of an energy level is number of orbitals corresponding to that energy level. तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करी जाए तो how many orbitals correspond to that energy level? The answer is 9. So that's the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom. Now degeneracy of second excited state of H minus. H minus is a multi-electron species. तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर n plus l रूल लगेगा. ठीक है. And n plus l रूल के हिसाब से we arrange the electrons in the relative order of energy, and what we find is that second excited state का degeneracy is 3 because of the 3 orbitals that correspond to it, 2px, 2py and 2pz. ठीक है. So this is something that I wanted to give you as a learning. ठीक है. जैसे अभी हाँ फॉर एग्जाम्पल श्रेयस का डाउट है, सर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में अलग अलग क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, दैट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ऑन n, whereas मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इट डिपेंड्स ऑन n as well as l. ठीक है. अब आप मुझे पूछोगे इसके पीछे का रीजन बताओ कि why सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिपेंड्स ऑन n and why in multi electron system it depends on n as well as l. तो इसके लिए मैंने आपको बोला that we don't have that much of derivation
as part of our understanding. एक superficial मैंने एक idea आपको दिया यहाँ पर. Single electron system में there is only interaction between the nucleus and electron, whereas multi-electron system में the interactions happen between nucleus and electron as well as between electron and electron. That is why this change happens. Now, how that change translates into these quantum numbers, that is something which is the math that we are not getting into the details of. ठीक है? Okay. सुमित, कुछ डाउट है तुम्हारा? बोलो. सर n plus l रूल में l की जो वैल्यू होती है दैट इज लाइक l की जो वैल्यू है दैट इज इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n minus 1 ना, तो फिर हम लोग उसमें l की बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना. हाँ, तो हम लोग पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे ना, उसका तो l वैल्यू फिक्स रहेगा. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आप लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं करके आए क्या? लास्ट क्लास में मैंने ऑर्बिटल्स का आइडिया दिया था ना आपको, दैट अराउंड द एटम और अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव दीज ऑर्बिटल्स 1s 2s 2px 2py 2pz, राइट? इस तरीके से मैंने आपको बताया. ठीक है? अब अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दैट इनका रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है? यस सर. अब what we do is we calculate, let's say multi electron system के लिए करना है कैलकुलेशन, तो we calculate the n plus l value for each of them, and जिसका n plus l value छोटा है उसका एनर्जी कम रहेगा, and in case n plus l value सेम आ जाता है दो ऑर्बिटल्स का, तो उसमें जिसका लोअर n होगा उसका एनर्जी लोअर होगा. ठीक है? ओके सर. ये समझ में आया? ऑर्बिटल्स विद सेम n एंड सेम l, उनका एनर्जी सेम ही रहेगा. ठीक है? जैसे 3D हो गया, तो 3D के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं 3D xy yz zx x square minus y square and z square, इनका सबका एनर्जी लेवल सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि इनका n वैल्यू एज वेल एज l वैल्यू सेम ही है. समझ में आया? तो चाहिए तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूँ, दैट ऑर्बिटल्स विथ सेम n and l, ठीक है, have equal energy. ठीक है? इनफैक्ट इसी को मैंने यहाँ पे बोला है that we call such orbitals as degenerate orbitals. So orbitals having the same energy will be the ones which will have the same n and same l in case of multi-electron system. Sorry, in case of multi-electron system, single electron system में जिनका same n होगा. ठीक है? हाँ, बोलो शिखर. सर जो सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू. सर वो आपने n plus l का रूल जो पढ़ाया था ना, तो सर आर दे रिलेटेड टू एंगुलर नोड्स, मतलब उसमें n minus l था सर? नहीं नहीं, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर. ओके सर. ठीक है? सो ये एक मैंने आपको एनर्जी का आइडिया दिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हाउ द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स वुड बी. अच्छा, अब मैं एक एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी आपको आइडिया देता हूँ. ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना. सो लेट मी पुट द हेडिंग as spin quantum number. So this is the fourth quantum number in the series of understanding quantum numbers.
एंड इसका सिंबल होता है, या तो कई बार ऐसे स्मॉल s लिख देते हैं, ठीक है, बट टिपिकली अवॉइड करते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल से कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर m सबस्क्रिप्ट s यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, ये चीज मैंने पहले भी आपको लिखवाई हुई है, दोबारा लिखवा देता हूँ। दिस क्वांटम नंबर is not a solution of Schrodinger equation. It was defined much later. It was defined much later after Stern-Galerk experiment. ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखना आप। हाँ, पॉली ने असाइन किया था, पर जो एक्सपेरिमेंट था विच led to the development of this spin quantum number, वो ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगेन, एक्सपेरिमेंट is not something which is part of your syllabus. This is something which will help you understand the concept of quantization of angular momentum, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। Now, as part of understanding the quantum mechanical model, हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसका पैरेलल या उसका एनालॉग जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ते हैं, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ रिजल्ट इज दैट एंगुलर मोमेंटम is quantized both in terms of magnitude as well as direction, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर ऑब्जर्व करना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बोल दिया था mvr होता है, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v उसका टेंजेंशियल स्पीड होगा एंड r विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होता है, राइट। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ, तो काम आता है थंब रूल, ठीक है, एंड इट इज राइट हैंड थंब रूल। सो यू टेक योर फिंगर्स एंड यू रोटेट देम इन अ मैनर of how the electron is revolving, and the direction in which the thumb is going to point is going to give you the direction of angular momentum, ठीक है। तो यहाँ पर let's say you have this electron going in this particular manner, ठीक है, and you curl your fingers, right hand का fingers, in the same manner in which the electron is going, ठीक है। So what you find is your thumb is pointing upwards, ठीक है, your thumb is pointing upwards, and that is the direction associated with the angular momentum vector, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होता है। इस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन।
नाउ यहां पर अब आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहां पर as a consequence of the Stern-Gerlach experiment, what came out as a result was that angular momentum of an electron is quantized both in terms of magnitude and direction. Okay, so this was something which came out as an important outcome of this experiment. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि in quantum mechanical model you have nucleus and nucleus के around electron. ठीक है, now the electron is something जिसका motion मैं describe नहीं कर सकता. ठीक है, इसका motion कैसा है एक electron का, I have no idea. ठीक है, however what we understood experimentally is that the electron does revolve around the nucleus in certain manner, we don't know, but the angular momentum that is generated because of the electron revolving around the nucleus, okay, I should not use the word revolve, I should just use the word moving. Okay, so because of the electron moving around the nucleus is quantized in terms of both direction and magnitude. Okay, and this angular momentum was called as orbital angular momentum. यहां पर ऑब्जर्व करना, इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड था that was found to be an integral multiple of, or no, I should not say actually integral multiple of, was found to be root L into L plus 1 h upon 2 pi, square root of L into L plus 1 into h upon 2 pi, and the direction, ठीक है, इसका जो z component होगा, ठीक है, ये मैं जस्ट अभी के लिए एक बार फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा डेल मैं बाद में करूंगा, इसका जो z component होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड उसका फॉर्मूला, उसका रिजल्ट रहेगा ml into h upon 2 pi, where L is the angular quantum number, ठीक है, azimuthal, or we say angular quantum number, and ml is the magnetic quantum number, right? So ये orbital angular momentum जो था, right, this was due to motion of electron around nucleus. Now, क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन मीन्स, वो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो
that this was your nucleus, ठीक है, एंड हम ऑर्बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं मैं। तो अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो दिस कैन बी वन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर रहेगा, अपवर्ड, ठीक है। और यू कैन से दैट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं वही थंब रूल अप्लाई करूं तो दिस कम्स आउट एज अ डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो दिस कम्स आउट एज अ डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर 2D पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, बट दैट 2D पाथ कैन बी फ्लैट, कैन बी वर्टिकल, कैन बी हॉरिजॉन्टल, कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन, राइट। एंड एज अ रिजल्ट द एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक जा सकता है, आई कैन से 0 से 180 डिग्री तक के बीच में रह सकता है कुछ भी। However, what was found out was that when electron is moving around the nucleus, ठीक है, we don't know its path, ठीक है, but because of its movement, because of its motion around the nucleus, जो orbital angular momentum generate हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है एज वेल एज डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। तो जो उसका z कंपोनेंट होगा, ठीक है, z कंपोनेंट कैसा हो जाता है, मतलब z एक्सिस के साथ में आप ये जैसे आपने बोल दिया कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ ओरिजिन पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, मान लो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, तो अब ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एंगल रहेगा z एक्सिस से, ठीक है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ठीक है। लेट्स से थीटा इज द एंगल विद द z एक्सिस, तो L cos थीटा, एंड इट कैन ओनली हैव पर्टिकुलर वैल्यूज which is ml h/2 तो थीटा की भी पर्टिकुलर वैल्यूज ही रहेंगी, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसकी, वो मैं थोड़ा टाइम बाद आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन द पॉइंट दैट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर क्वांटाइज्ड। अच्छा, नाउ वंस यू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दैट हाइड्रोजन एटम है एंड इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L फॉर 1s इलेक्ट्रॉन? 0, राइट। L का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया ना, राइट। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। नाउ the thing was that when Stern and Gellert did an experiment, they found something unexpected. Which led us to understand spin angular momentum. ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूँ। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, याद रखना, बिकॉज एक्सपेरिमेंट ही पार्ट नहीं है सिलेबस का। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल सा है, दैट यू हैव एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा हुआ है, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम लोग पहले एक बार मैग्नेट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है।
बार मैग्नेट मतलब छोटा सा ऑब्जर्वेबल मैग्नेट है जो हम थ्रो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, विच विल हेल्प अस आइडेंटिफाई द डिफ्लेक्शन दैट इज फेस्ड बाय दिस बार मैग्नेट। ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम लोग थ्रो करेंगे एंड ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा स्क्रीन में, लेट से कहीं पे स्ट्राइक कर गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ अभी लेट से वर्टिकल था, तो आई विल पुट इट एट सम एंगल। ठीक है, आई विल कीप ऑन रोटेटिंग दिस बार मैग्नेट एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो अब बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंगल जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके एंगल पे भी फर्क पड़ेगा, एंड हो सकता है मैग्नेट किसी और जगह पे जाके स्क्रीन पे टकराए। ठीक है, एंड आई टेक और रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एंड ये जो बार मैग्नेट है इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में थ्रो करूंगा, एंड यहाँ स्क्रीन में व्हाट आई फाउंड आउट इज बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन इन विच आई वाज थ्रोइंग, द बार मैग्नेट डिफ्लेक्टेड एंड पूरा एक ऐसा मतलब रेंज में उसका डिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है, ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहा था, एंड बीच में भी बहुत जगह पर आ रहा था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन of orientation of bar magnet. ठीक है, now what Stern and Gallard did was that instead of taking now a bar magnet, they repeated this experiment, ठीक है, with silver atoms. उन लोगों ने सिल्वर एटम के लिए करा, पर बाद में एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने हाइड्रोजन एटम को थ्रो करा। ठीक है, नाउ अब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 1s का इलेक्ट्रॉन है, तो अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो तो जीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कमिंग जीरो, वी से दैट हाइड्रोजन एटम शुड हैव नॉट अंडरगॉन अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, बिकॉज कैसा होता है, हम लोग बोलते हैं एटम इज अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, देयर इज दिस टर्म or there is this statement that is commonly used saying that atom itself is a tiny magnet. Why is atom a tiny magnet? Because magnetism is actually a property of charged particles also. ठीक है, मतलब if you throw an electron or a proton or any charged particle through a magnetic field, it will undergo a deflection. ठीक है, similarly an atom जिसके अंदर you have nucleus and electrons present around it, ठीक है, they will also undergo a deflection if you throw them through a magnetic field. ठीक है, तो उस तरीके से ये जो कैलकुलेशन था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, जिससे हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो आ रहा था, डिफ्लेक्शन expected नहीं था. However, what happened was that hydrogen atom did deflect, and something very surprising happened, that hydrogen atom deflected either only up or only down. It did not deflect anywhere in between. ठीक है, इनफैक्ट अच्छा, अक्षता का एक डाउट आया, सर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो ओवरऑल एटम शुडंट हैव मैग्नेटिक फील्ड. अक्षता, आपने बार मैग्नेट देखा है? बार मैग्नेट भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट उसमें कैसे फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है? सो द थिंग इज दैट व्हेन वी स्टडी मैग्नेटिज्म ना, जब आप लोग कभी मैग्नेटिज्म को डिटेल में ऑब्जर्व करोगे, द थिंग इज दैट पार्टिकल्स, एटम्स, इवन कलेक्शन ऑफ एटम्स
ठीक है, एंड यू कैन से कलेक्शन ऑफ एटम्स, इनको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं, बाद में वर्ड यूज करा जाएगा, राइट? दे ऑल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? सो इवन हाइड्रोजन एटम इज अ टाइनी मैग्नेट. Now, what was surprising as a result of this experiment was that the hydrogen atom was either going up or was going down. ठीक है, बीच में कहीं पर भी नहीं आ रहा था. Nowhere in between the two ends. So this was something that was an interesting observation, because इसके पहले जब हमने बार मैग्नेट थ्रो किया था, तो बार मैग्नेट के केस में क्या था, जो बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो हम लोग चेंज करते जा रहे थे, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग ओरिएंटेशन वी कुड सी दैट द डिफ्लेक्शन वाज कमिंग थ्रू आउट द स्क्रीन. बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को जब हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड रैंडमली बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को थ्रो कर रहे हैं, तो आइदर दे आर गोइंग अप or they are only going down, nowhere in between. So this prompted scientists to assign another angular momentum associated with electron, ठीक है, because ये orbital angular momentum जो है वो तो zero था because of the electron being present in 1s orbital. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से तो डिफ्लेक्शन आना नहीं चाहिए था, बट ये डिफ्लेक्शन आया, ठीक है. इसका मतलब देयर वाज अनदर एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, एंड द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज दैट दिस एंगुलर मोमेंटम had only two orientations corresponding to the two deflections that were there. So ये angular momentum या तो up था या फिर down था, and nowhere in between. So this new observation, this new discovery that was made based on the Stern and Gallard's experiment made scientists conclude that angular momentum of an electron, ठीक है, has two components. One is what we call as orbital angular momentum, which is due to the motion of electron around the nucleus, and the other is spin angular momentum, which we say is due to intrinsic spin. Now observe karna that in many books, when we talk about spin angular momentum, okay, how they kind of describe it to help visualize, okay. So an incorrect, okay, this is not correct, this is incorrect analogy that is given, even NCERT में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है. Incorrect analogy given to visualize this is by saying, oh, एक second.
So the incorrect analogy given to visualize this is spin of electron about its own axis. Okay, this is kind of an incorrect analogy. Although it is given, मतलब जैसे आप NCERT भी read करोगे, ठीक है, तो NCERT में भी आपको ये ऐसे ही बताया जाएगा that what is happening is that around the nucleus, electron is having a certain motion, ठीक है, which gives rise to this orbital angular momentum, and also the electron spins about its own axis, giving rise to something called as spin angular momentum. Okay. However, the thing is that this is not the correct analogy. This is something which is incorrect. What actually is there that you can't have a classical analogy to describe this. तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, there is no classical analog to help visualize this property. Okay? In fact, this became a new fundamental property associated with particles. जैसे charge, mass, ठीक है, these energy, these are fundamental properties associated with matter. ठीक है, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे चार्ज क्यों होता है, तो मेरे पास आंसर नहीं है आपके लिए. आप मुझसे पूछोगे मास क्यों होता है, मेरे पास आंसर नहीं. आप मुझसे पूछोगे एनर्जी क्यों होती है, मेरे पास आंसर नहीं है इस चीज का. बिकॉज दीज आर समथिंग that we have observed around us. No one has an answer to this. This is our observation of the universe around us. उसी तरीके से this particular property of spin, ठीक है, although the word gives you kind of a visualization कि something is spinning, but this is something which is also a fundamental property that was found to be associated with particles. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पता करा गया. ठीक है, बाद में जब और फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर होते गए लाइक फोटॉन्स, क्वार्क्स, तो इन सब की भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन वाज अंडरस्टूड. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड है, दैट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, देयर इज नो क्लासिकल एनालॉग टू हेल्प विजुअलाइज इट. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ये मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम was found to be quantized in terms of direction as well as magnitude. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसको मैं ऐसे L सबस्क्रिप्ट S से डिनोट कर रहा हूँ. इसका मैग्नीट्यूड इज रूट S इंटू S प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई. ठीक है, where S is a fixed value, that is half. ठीक है, and LS का Z component,
z component of spin angular momentum was found to be also quantized, and the result was ms into h upon 2 pi, where ms is the fourth quantum number or spin quantum number as we call it, and it has two allowed values corresponding to the two directions in which those deflection happened, up or down, which has two allowed values plus half and minus half. Okay. So this was something which is also an important result that we need to remember for the quantum mechanical model. ठीक है, ये जो S यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, this is not the S subshell or S orbital. This is unfortunately the same S का symbol that is used for S orbital, but this is not the S orbital का S. This is just a value of S equal to half. Okay, this is actually, you can say, the mod value of the spin quantum number. ठीक है, सो मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना. ठीक है, हम लोगों ने आज का ऑब्जेक्टिव रखा था एक तो ऑर्बिटल्स का रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी समझने का एज अ रिजल्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एंड दूसरा was to understand the angular momentum, and in which I spoke about the two components of it, orbital as well as spin. ठीक है, तो कमिंग टू द स्पिन वाला पार्ट, तो इसमें मैंने आपको बताया दैट इसी के साथ में एक्चुअली फोर्थ क्वांटम नंबर जो हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो इंट्रोड्यूस हुआ था. तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करके दिया दैट बेस्ड ऑन experimental evidence performed by Stern and Gallac, we understood that angular momentum of an electron is quantized. Okay, when we go at an atomic subatomic scale, that angular momentum of an electron is quantized both in terms of magnitude and direction. Now, starting में it was only angular orbital momentum that was understood and calculated, and this was something which was because of the motion of the electron around the nucleus, that we understand that whenever there is angular motion, ठीक है, there will be an angular momentum associated with it, and उसको हमने वो नाम रख दिया था orbital angular momentum. ठीक है, and उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का फॉर्मूला हमें समझ में आया, हमें याद रखना है. ठीक है, इट वाज रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई, एंड दिस वाज द जेड कॉम्पोनेंट. ठीक है, जेड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. This was also quantized equal to ml into h upon 2 pi. ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है, ये चीज बताने में हेल्प करता है.
ठीक है, where small l is the azimuthal quantum number and ml is the magnetic quantum number. ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा तो उसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट होंगे ना हर्ष, ये उसका जेड कॉम्पोनेंट के बारे में बात करा जा रहा है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व करना इसी के साथ में. अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम and explaining the spin angular momentum, I gave you certain insight into what the Stern-Gallac experiment was, and the highlight associated with the Stern-Gallac experiment, that when a bar magnet is thrown through the magnetic field, we observed that the bar magnet was going in all direction, in all deflections, because bar magnet का orientation जो था वो कैसा था, continuous. हम लोग ऐसे vertical भी रख सकते थे, horizontal भी रख सकते थे, उसको reverse भी रख सकते थे, and बीच के सारे angles पे possibly उसको रख सकते थे. And because of that, we found out that the deflections were happening in all directions. But when we repeated the experiment with hydrogen atoms, we found out that the hydrogen atoms were either going up or down, and that was not because of the orbital angular momentum. There was something else because of which the deflection was being observed, and this is something that was given the name spin angular momentum. जिसके लिए the important takeaway is that there is no classical analog. ठीक है, you can't describe the spin angular momentum in a visualization kind of manner. There is no classical analog for it. It is just something that we have found as a fundamental property associated with all elementary particles. And sometimes in books there is this incorrect analogy that is given. ठीक है, इस पर इनफैक्ट जेई ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैं आपको इनफैक्ट वो क्वेश्चन भी दिखाता हूँ. सो एक्सपेक्टेड नहीं था कि जेई इतना डिटेल में पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तक में एक्चुअली रोटेशन ही लिखा हुआ है कि इट रोटेट्स, द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. सो everyone was this opinion, and वैसे ही पढ़ाते भी थे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन मान लो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से. बट then long back this question came in which forced everyone to put in the correct perspective. So एक question observe करना है यहाँ पर, that the quantum numbers plus half and minus half for the electron spin represent what? Now, rotation of electron in the clockwise and anti-clockwise direction respectively, the answer is no. B option, again the answer is no. The rotation of electron in clockwise or anti-clockwise direction, no. Magnetic moment of electron pointing upward और डाउनवर्ड. तो अगर इसमें से एक्चुअली रेस्पेक्टिवली वर्ड हटा देते, then this would have been correct, because that is what the electron spin represents, that magnetic moment. अब आपको आई थिंक मैग्नेटिक मोमेंट अभी वर्ड समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको एक दो क्लास बाद बताऊंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड क्या होता है. ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, एक दो क्लास बाद बताऊंगा. बट ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन बोल के छोड़ देते तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता. रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया तो वो गड़बड़ हो गया. क्यों? बिकॉज ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि प्लस हाफ को अप या माइनस हाफ को डाउन ऐसा कुछ बताया जाता है. ठीक है, तो ऐसा रेस्पेक्टिवली जैसा कुछ भी नहीं कर सकते. Now what became the correct answer is the D option, that the two quantum mechanical spin states
have no classical analog. That is, there is no way in which we are able to describe this spin quantum number in terms of visualization. ठीक है, इसका इफेक्ट दिख रहा है, इसका इफेक्ट दिख रहा है दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो करा हाइड्रोजन एटम को तो इट डिफ्लेक्टेड, पॉइंटिंग आउट दैट देयर इज अ रिस्पॉन्स. मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूँ. मैग्नेटिक मोमेंट इज response to an external magnetic field. Okay, this is the simplest way in which I can describe magnetic moment. This is the response. जैसे हमने देखा हाइड्रोजन एटम को हमने थ्रो करा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हुआ, उस पर एक फोर्स लगा which deflected it up or down. ठीक है, तो उस रोटेशनल फोर्स को टॉर्क बोलते हैं and that is what moment is. But अभी के लिए just keep it very simple. Response to an external magnetic field, and that response to an external magnetic field which is up or down, that is what was represented by this spin quantum number. ठीक है, बट रेस्पेक्टिवली वर्ड ने गड़बड़ कर दिया. ठीक है, so the correct answer was actually D option. ये समझ में आया आपको? ठीक है, सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से सुनना that when we are going to discuss these results of quantum mechanical model, ठीक है, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा बिकॉज we will not be doing derivations, we will not be building up things in a step by step manner, but जब आप इनके क्वेश्चंस सॉल्व करोगे you will find the questions to be extremely straightforward and easy based on the simple formulas that I have described in front of you. तो इसमें जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट रहेगा उतना नॉलेज मैं आपको दिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एंड आज जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में ट्राई करने के लिए और आप लोग उन क्वेश्चंस को करोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ क्वाइट कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज. ठीक है, इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट कर लिया है, जो स्टार्टेड अ बिट अर्लियर, दे वुड आल्सो रियलाइज दैट फील नहीं आती कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आखिर है क्या, पर हाँ मतलब जो इसके क्वेश्चंस हैं दे आर समथिंग दैट दे आर एबल टू वर्क विद because the questions are based on certain simple formulas only. ठीक है, मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतनी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को. एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा और फील दिलाऊंगा आफ्टर शोइंग दीज रिजल्ट्स. आई विल ट्राई टू गिव यू मोर perspective into the wave function and the shapes of the orbitals, but थोड़ा सा रिजल्ट्स पढ़ने के बाद में आफ्टर डूइंग द होमवर्क. ठीक है, सो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं. ऑन द ग्रुप आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू व्हिच यू कैन डू बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडीड येस्टरडे एंड टुडे. ठीक है, तो वो आप ट्राई करना. एंड पिछले वाले होमवर्क का भी मैंने अभी तक आपको भेजा नहीं ना सॉल्यूशंस. पिछले वाला होमवर्क भेज दिया था मैंने डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाले का. इफ आई रिमेंबर आई थिंक मैंने भेज दिया था या फिर नहीं भेजा होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा. सो आई विल शेयर दैट एज वेल. ठीक है, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइज. लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर. थोड़ा सा मैंने आज एक्सटेंड कर दिया आप लोगों के साथ में. ऑल राइट, बाय गाइज.